हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. I hope you all will be fine. Today we will read chapter 3, which is atoms and molecules. So let's start our chapter. In the previous chapter, you learned about matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Maharishi Kannad, an Indian philosopher, discussed it in his Darshan, Vaisheshik Darshan. He said, if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. A stage would come beyond which further division will not be possible. He named these particles as Parmanu. This concept was further elaborated by another Indian philosopher, Pakuda Katyayan. Katyayan said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. तो हम लोग पिछले चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग को आइडिया लग चुका कि मैटर को हम लोग कैसे जो मैटर का डिवीजन है वो हम लोग के जो इंडिया में वो 500 बीसी से कंसिडर किया जा रहा है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। तो महर्षि कन्नड़ जो कि इंडियन फिलोसफर, उन्होंने अपने दर्शन वैशेषिक दर्शन में इसके बारे में डिस्कशन किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर मैटर को डिवाइड करेंगे तो जो मैटर है वो अपने छोटे से छोटे पार्टिकल्स में चेंज होते जाएगा और एक ऐसा स्टेज हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोग मैटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इस पार्टिकल्स को परमाणु बोला है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडियन फिलोसफर एक और है पकूड़ा कात्यायन, उन्होंने भी बोला है कि जो नॉर्मली जो पार्टिकल्स है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैटर के। अराउंड द सेम एरा एन एंशिएंट Greek philosopher Democritus 460 to 370 BC and Lysippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when further division of particles will not be possible. Democritus calls us individual particles atoms, which means indivisible. These ideas were based on philosophical considerations. Experimental work to validate these ideas could not be done till the 18th century. However, today we know that an atom is and how it is, what an atom is and how it is responsible for different properties of substances. In this chapter, we shall study about atoms and molecules and related aspects like atomic and molecular masses, mole concept and molar masses. We shall also learn how to write chemical formula of a compound. तो उसी टाइम में जो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और लूसीफर, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और डेमोक्रिटस इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम्स बोले थे, जिसका मतलब कि इंडिविजिबल होता है, मतलब उसको अब और भाग में बांटा न जाए। और ये जो आइडिया था वो फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड था और इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क भी किया गया। 18th सेंचुरी इस पे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था इस आइडियाज पे वो 18th सेंचुरी तक नहीं किया गया था। और आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कि एटम क्या है और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के लिए। इस चैप्टर में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जैसे कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स मूव फर्दर। So here is a topic which is laws of chemical combinations. There was tremendous progress in chemical science after 18th century. It arose out of an interest in the nature of heat and the way things burn. Major progress was made through the careful use of chemical balance to determine the change in mass that occurs in chemical reactions. The great French chemist Antoine Lavoisier used the balance to study chemical reactions. He heated mercury in a tin flask that contained air. After several days, a red substance, mercury 2 oxide, was produced. The gas remaining in the flask was reduced in mass. The remaining gas was neither able to support combustion nor life. The remaining gas in the flask was identified as nitrogen.
The gas which combined with mercury was oxygen. Further, he carefully performed the experiment by taking a weight quantity of mercury 2 oxide. After strong heating, he found that mercury 2 oxide red in color was decomposed into mercury and oxygen. He weighted both mercury and oxygen and found that their combined mass was equal to that of mercury 2 oxide taken. Lavoisier finally came to the conclusion that in every chemical reaction, total masses of all the reactants is equal to the masses of all the product. This law is known as the law of conservation of mass. तो केमिकल साइंस में 18th सेंचुरी के बाद बहुत सारे प्रोग्रेस हुए और ये जो इंटरेस्ट है कि जैसे हम लोग नेचुरल जो हीट है वो कैसे किसी चीज़ को बर्न करता है, उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ केमिकल बैलेंस करने में, वो केमिकल रिएक्शन से अरोज हुआ। केमिकल रिएक्शंस के कारण इस चीज़ को उठाया गया। और जो हमारे एक ग्रेट फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी लेवोजियर था, उन्होंने पहले केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके स्टडी किया उसके बारे में। उन्होंने क्या किया, जो मरकरी था उसे उन्होंने सील फ्लास्क में जिसमें एयर कंटेंट था उसमें उन्होंने हीट किया और बहुत दिनों के बाद उन्हें एक रेड सब्सटेंस जो कि मरकरी 2 ऑक्साइड था उसका उन्होंने प्रोडक्शन देखा। और जो गैस था फ्लास्क में मौजूद वो वहाँ पे बचा हुआ था। और जो रिमेनिंग गैस था वो ना ही तो कंबसन को सपोर्ट कर रहा था और ना ही लाइफ को सपोर्ट कर रहा था। और जो रिमेनिंग गैस था फ्लास्क में उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, नाइट्रोजन के रूप में। और जो गैस मरकरी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन था उसे उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने केयरफुली उससे फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, उसकी क्वांटिटी जो मरकरी 2 था ऑक्साइड का उसको उन्होंने क्वांटिटी मतलब वेट किया। और उसके बाद उन्होंने जब स्ट्रांग हीट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो मरकरी 2 ऑक्साइड था वो रेड इन कलर था और जो कि डिकम्पोज हो गया मरकरी और ऑक्सीजन में। मतलब कि जो मरकरी 2 ऑक्साइड था वो डिकम्पोज हो गया, मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। और उन्होंने फिर से मरकरी और ऑक्सीजन को वेट किया तो उनका जो कंबाइंड मास था वो उसके मरकरी 2 ऑक्साइड का उसके बराबर था। तो उन्होंने लेवोजियर ने फाइनली ये कंक्लूजन किया और उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक डेफिनेशन निकाला जो क्या था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो उसमें जितने भी टोटल मास हो रिएक्टेंट्स के वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होते हैं। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन एवरी केमिकल रिएक्शन total masses of all the reactants is equal to the masses of all the products, and this law is known as law of conservation of mass. There was rapid progress in science after chemists began accurate determination of masses of reactants and products. French chemists Claude Berthollet and Joseph Proust worked on the ratio by mass of two elements which combine to form a compound. Through a careful work, Proust demonstrated the fundamental law of definite or constant proportion in 1808. In a given chemical compound, the proportion by mass of the elements that compose it are fixed, independent of the origin of the compound or its mode of preparation. तो फिर साइंस में बहुत सारी रैपिड प्रोग्रेस हुए केमिस्ट से जो जिन्होंने एक्यूरेट डिटर्मिनेशन निकाला मास और के रिएक्टेंट्स के मास को और प्रोडक्ट्स के मास का। जो फ्रेंच केमिस्ट क्लॉड बरहॉलिट थे और जोसेफ प्रॉस्ट थे उन्होंने रेशियो के ऊपर वर्क किया कि एलिमेंट्स के रेशियो को कंबाइन अगर किया जाए, उसने जब कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो उसके रेशियो के ऊपर उन्होंने वर्क किया और उन्होंने केयरफुली इसके ऊपर वर्क किया। जो प्रॉस्ट थे उन्होंने फंडामेंटल लॉ निकाला डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो कि 1808 में उन्होंने निकाला। और उसका क्या था फंडामेंटल लॉ कि जो भी गिवन केमिकल कंपाउंड है उसका जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का मास से जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ओरिजिन से कंपाउंड का निकले या फिर हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये इस पे बेस नहीं ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। In pure water, for instance, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1 is to 8, irrespective of the source of water. In other words, pure water contains 11.11% of hydrogen and 88.89% of oxygen by mass, whether water is obtained from well, river, or from a pond. Thus, if 9.0 gram of water are decomposed, 1.0 gram of hydrogen and 8.0 gram of oxygen are always obtained. Furthermore, if 3.0 gram of hydrogen are mixed with 8.0 gram of oxygen and the mixture is ignited, 9.0 gram of water are formed and 2.0 gram of hydrogen remains unreacted.
Similarly, sodium chloride contains 60.66% of chlorine and 39.34% of sodium by mass, whether we obtain it from salt mines or by crystallizing it from water of ocean or inland salt seas or synthesizing it from its elements sodium and chlorine. तो एग्जाम्पल के लिए प्योर वाटर ले लिए, उसका जो हाइड्रोजन का जो रेशियो है मास में और उसके ऑक्सीजन का है वो हमेशा 1:8 का रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से ले। प्योर वाटर से जो कंटेन करते हैं वो 11.11% हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और 88.89% ऑक्सीजन उसके मास में रहता है। और हम लोग किसी भी सोर्स से प्योर वाटर के सोर्स से हम लोग वाटर ले लें, चाहे वो वेल से, कुएं से ले लें या फिर तालाब से ले लें या फिर नदी से ले लें, ठीक है। अगर हम लोग फिर से जो 9.0 ग्राम अगर वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें हम लोग को 1.0 ग्राम हाइड्रोजन ऑप्टेन होगा और 8.0 ग्राम ऑक्सीजन हम लोग को हमेशा ऑप्टेन होगा। और वही हम लोग 3.0 ग्राम अगर हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं 8.0 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं तो हम लोग को 9.0 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। और जो 2.0 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, मतलब उसका रिएक्शन नहीं होगा। वैसे जो सोडियम क्लोराइड कंटेंट्स क्या जो सोडियम क्लोराइड है वो 60.66% क्लोरीन को और 39.34% को सोडियम वो मास के अकॉर्डिंग टू मास वो कंटेन करता है। चाहे वो हम लोग कहीं से भी उस चीज को ऑप्टेन करें, सॉल्ट माइन से ऑप्टेन करें या फिर जो सी वाटर या फिर ओशियन हो गया उनसे हम लोग वाटर को क्रिस्टलाइज करके उससे गेन करें, ठीक है। Of course, the keyword in the sentence is pure, reproducible. Experimental results are highlights of scientific thoughts. In fact, modern science is based on experimental findings. Reproducible results directly hint for a truth which is hidden. Scientists always work for finding this truth, and in this manner, many theories and laws were discovered. This search for truth plays an important role in the development of science. तो ये जो साइंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो साइंस है उसमें जो प्योर जो शब्द आया है वो क्या है, साइंटिफिक थॉट्स पे पूरी तरह से बेस्ड है। और जो हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स पे बेस्ड है। ये जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड नहीं करते हैं वो तब तक हिडन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स इनडायरेक्टली हिंट फॉर अ ट्रूथ विच इज हिडन, मतलब कि हम लोग जैसे ही जब तक उस एक्सपेरिमेंट को करते नहीं है तब तक जो ट्रुथ होता है वो छिपा हुआ होता है। और जो साइंटिस्ट है वो हमेशा ट्रुथ को फाइंड करने के लिए वर्क करते रहते हैं और इस मैनर में जो बहुत सारे थ्योरीज और लॉज का डिस्कवर होता है। और ये जो सर्च है ट्रुथ को हम लोग जब खोजने के लिए जब हम लोग जो भी सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंस के डेवलपमेंट का रोल होता है। So here is the Dalton's atomic theory, which is important for exam and it is definitely asked by examiners in our exam. So let's see what is Dalton's atomic theory. The English scientist John Dalton was by no means the first person to propose the existence of atoms. As we have seen in the previous section, such ideas date back to classical times. Dalton's major contribution was to arrange those ideas in proper order and give evidence for the existence of atoms. He showed that the mass relationship expressed by Lavoisier and Proust in the form of law of conservation of mass and law of constant proportions could be interpreted most suitably by postulating the existence of atoms of the various elements. In 1803, Dalton published a new system of chemical philosophy in which the following statements comprise the atomic theory of matter. Matter consists of indivisible atoms. All the atoms of a given chemical element are identical in mass and in all other properties. Different chemical elements have different kinds of atoms, and in particular, such atoms have different masses. Atoms are indestructible and retain their identity in chemical reactions. The formation of a compound from its elements occurs through the combination of atoms of unlike elements in small whole number ratio. तो हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एटम्स को प्रपोज किया, एटम्स के बारे में बताया। और हम लोग प्रीवियस सेक्शन में पढ़ रहे हैं जो आइडिया है एटम के बारे में वो हमारे क्लासिकल टाइम से ही चल रहा है। और जो डाल्टन्स थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने इस आइडिया को अरेंज किया और उसे एविडेंस के तौर पे हम लोग के सामने प्रूफ किया। उन्होंने क्या प्रूफ किया, जो मास का जो रिलेशनशिप था लेवोजियर प्रोस्ट का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के रूप में था, उन्होंने इस चीज को इंटरप्रेट किया। और उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे उन्होंने पोस्टुलेट्स उन्होंने बताए थे कि जो एटम्स है वो कैसे एग्जिस्ट करता है वेरियस एलिमेंट्स में। तो 1803 में जो डाल्टन थे उन्होंने एक न्यू सिस्टम को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने केमिकल फिलॉसफी के बारे में दिखाया। एटम्स
एटम्स के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट्स उनके जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए उन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में बताया था। उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो क्या करता है, इंडिविजुअल एटम्स को कंसिस्ट करता है। मीन्स मैटर में एटम्स होते हैं जिसको लास्टली जाके उसको डिवाइड ना कर पाए, और जितने भी एटम्स हैं उनके जो गिवन जो केमिकल एलिमेंट है वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और अदर प्रॉपर्टीज में भी। और जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डिफरेंट उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, और जो सेम एटम्स मतलब जो कंसिस्ट करते हैं उसके जो मास है वो डिफरेंट होते हैं। और जो एटम्स है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब उसको हम लोग कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते उसको, और वो अपने आइडेंटिटी को रिटेन करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है। और जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है एलिमेंट से, तो कैसे होता है, जो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो भी स्मॉल होल नंबर रेशियो में। Dalton's fourth postulate is clearly related to the law of conservation of mass. Every atom of an element has a definite mass. Also, in a chemical reaction, there is rearrangement of atoms. Therefore, after a reaction, mass of the product should remain the same. The fifth postulate is an attempt to explain the law of definite proportions. A compound is a type of matter containing the atoms of two or more elements in small whole number ratio. Because the atoms have definite mass, the compound must have the elements in definite proportion by mass. तो डाल्टन्स का जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो किससे रिलेटेड है, क्लियरली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने बताने का कोशिश की कि जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के उनके डिफरेंट मास होते हैं, और उनके जो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, और रिएक्शन के बाद जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। और जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उन्होंने क्या बताया, जो इसमें जो अटेम्प्ट उन्होंने किया फिफ्थ पोस्टुलेट को बनाने में, उन्होंने क्या बताया कि ये लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस के इक्वल है। इट मीन्स जो कंपाउंड है मैटर जिसमें कंटेन करता है एटम्स को, वो दो या दो से ज्यादा एटम को अपने स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंसिस्ट करता है, क्योंकि जो एटम्स है उसका डिफरेंट मास होता है, और जो कंपाउंड होता है जो एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास में कंसिस्ट करता है। The Dalton's atomic theory not only explained the laws of conservation of mass and law of constant proportion, but also predicted the new ones. He deduced the law of multiple proportions. On the basis of his theory, the law states that when two elements form more than one compound, the masses of one element in these compounds for a fixed mass of the other element are in the ratio of a small number or whole numbers. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन किया, बल्कि उन्होंने एक न्यू लॉ बना दिया जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के नाम से जाना गया। इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो दो एलिमेंट्स है वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, एक जब वन मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट का जो मास है वो उस कंपाउंड के हिसाब से फिक्स्ड मास में है, और जो अदर एलिमेंट है उसमें जो उनका जो रेशियो है वो कैसे स्मॉल होल नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म टू कंपाउंड। जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो टू कंपाउंड्स को बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 1.3321 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन for each 1.000 gram of carbon, whereas carbon dioxide contains 2.6642 gram of oxygen for 1.0000 gram of carbon. In other words, carbon dioxide contains twice the mass of oxygen as it contained in carbon monoxide. So, for a given mass of carbon, atomic theory explains this by saying that carbon dioxide contains twice as many oxygen atoms for a given number of carbon atoms as does carbon monoxide. The deduction of a law of multiple proportions from atomic theory was important in convincing chemists of the validity of the theory. एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन को दो कंपाउंड बनाया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड में 1.3321 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और इसमें जो कार्बन है वो कितना है 1.000 ग्राम, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में 2.6642 ग्राम ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कितना है, तो उसके डबल है ऑक्सीजन के, यहाँ पे इसका डबल किया गया 2.6642 को 2 से देखिए यहाँ पे डबल किया गया है, तो उसमें क्या हुआ कि जो हम लोग का मास ऑफ कार्बन है वो यहाँ पे हम लोग को शो किया गया। और जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन का जितना एटम है उससे दुगना एटम कार्बन का होता है, ठीक है।
वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हो गया। और जो इसमें जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है एटॉमिक थ्योरी का, वो इम्पोर्टेंट था केमिस्ट लोग को कन्विंस करने के लिए कि ये जो थ्योरी है वो वैलिड है। व्हाट इज एन एटम? सो लेट्स सी। As you have just seen in the previous section, that an atom is the smallest particle of an element that retains its elements chemical properties. An atom of one element is different in size and mass from the atoms of the other elements. These atoms were considered indivisible by Indian and Greek philosophers in the beginning, and the name atom, as mentioned earlier, emerged out of the basic philosophy. Today we know that atoms are not indivisible. They can be broken down into still smaller particles through they lose their chemical identity in this process. But in spite of all these developments, atom still remains a building block of matter. तो आप लोगों ने जैसे प्रीवियस सेक्शन में देखा कि जो एटम्स है वो किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, मीन्स बनाए रखता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। और जितने भी एटम जो एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मास भी डिफरेंट होते हैं अदर एलिमेंट्स के एटम से। और ये जो एटम्स है उसे क्या कंसिडर किया गया कि इनडिविजिबल होते हैं इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा। बिगिनिंग में यही बोला गया था कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल होते हैं। बट आज हम लोग जानते हैं कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, इट मीन्स एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है। और जब डिवाइड करते हैं हम लोग एटम्स को तो वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को केमिकल आइडेंटिटी को वो क्या करते लूज कर देते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन इन सब के बावजूद जो एटम्स है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक ही रहेगा, वो एटम्स के बिना मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। What is the size of atom? Now we have to see and what is the size of atom? Atoms का size क्या होता है? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. In order to have a feeling of a size of an atom, you can consider this example. 1 teaspoon of water, about 1 ml, contains about 3 times as many atoms as Atlantic Ocean contains teaspoons of water. Also, more than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as this sheet of paper. Atoms of different elements not only differ in mass as proposed by Dalton, but also they differ in size. Now, question is, why should we bother for the size, mass, and other properties of an atom? The reason is simple. Every matter we see around us is made of atoms. Is it rectangular, circular, or spherical? It is difficult to imagine the real shape of an atom, but for all practical purposes, it is taken as spherical in size, and that is why we talk of its radius. Since size is extremely small and indivisible to our eyes, we adopt a scale of nanometer. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter to express its size. You can have a feeling of its size from the following table 3.1. तो एटम्स बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते या फिर उसके बारे में हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और एटम्स के साइज को फिल करने के लिए हम लोग को क्या एक एग्जांपल देखना होगा कि हम लोग एक टी स्पून वाटर लिए जिसमें 1 ml रहा और उसमें कितने एटम्स रहेंगे, तो जितने अटलांटिक ओशियन के टीस्पून ऑफ वाटर में मतलब कि रहेंगे एटम्स उस हिसाब से। तो फिर क्या है कि मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स और जब हम लोग किसी बार्ली को जो वो थिक शीट उसका जो होता है पतला सा, जब उसके एटम्स के बारे में सोचेंगे तो इतना मतलब कि उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स रहते हैं इतना और उसी से एक शीट का तैयार होता है पेपर की शीट का, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं उनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ मास में ही अलग नहीं होते हैं, वो साइज में भी अलग होते हैं। जैसा कि डाल्टन ने प्रपोज किया था कि उनके मास के डिफरेंट होते हैं बट उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और हम लोग के मन में क्वेश्चन उठा कि हम लोग उसका जो एटम्स है उसके साइज के बारे में क्यों सोचे, मास के बारे में क्यों सोचे और जो एटम्स के अदर प्रॉपर्टीज उसके बारे में क्यों सोचे। तो रीजन क्या है उसका, बहुत सिंपल है कि जो जितने भी मैटर हैं हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो सब एटम से बने हैं। और क्या पता वो रेक्टेंगुलर शेप के हो या फिर सर्कुलर शेप हो या फिर स्पेरिकल शेप हो के हो, तो हम लोग को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है उसकी शेप को, रियल शेप को। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग स्पेरिकल साइज को टेक किया, मतलब स्पेरिकल साइज इमेजिन किए कि किसी भी एटम जो कोई भी एटम हो वो स्पेरिकल साइज का होता है, इसलिए हम उसके रेडियस के बारे में बात करते हैं। और जो रेडियस है, पहले तो जो एटम है वो हम लोग
इतना छोटा होता है कि हम लोग उसे अपने आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने उसके रेडियस को मेजर करने के लिए एक नैनोमीटर स्केल को अडॉप्ट किया है, जो उसके साइज को एक्सप्रेस करता है। एंड हियर इज दैट नैनोमीटर स्केल 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। और आप लोग इस चीज को टेबल 3.1 से समझोगे। Here is the table 3.1 which shows relative sizes, radius in meter and example। जैसे कि यहाँ पे आपको एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको रेडियस दिखाया गया, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब कि जो बालू होता है उसका साइज आपको यहाँ पे बताया गया, वाटरमेलन के साइज को बताया गया, यहाँ पे जो क्रिकेट बॉल है उसके साइज को बताया गया है। So you cannot see atoms with your naked eyes, but by using modern techniques, we can now produce magnified image of surface of elements showing atoms. That technique is known as scanning tunneling microscopy (STM) figure 3.2। तो आप लोग एटम्स को अपने नेट आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू हम लोग मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के सरफेस को जो कि एटम्स को शो करता है, और इस टेक्निक को स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी बोला जाता है, जो कि एसटीएम। यहाँ पे फिगर 3.2 shows image of copper surface by STM technique. Atom can be seen in magnified image of surface. Okay. Now we have atomic mass. Dalton gave the concept of atomic mass. According to him, atoms of the same element have same atomic masses, but atoms of different elements have different atomic masses. Since Dalton could not weigh individual atoms, he measured relative masses of the elements required to form a compound. From this, he deduced relative atomic masses. For example, we can determine the experiment that 1.0000 gram of hydrogen gas reacts with 7.9367 gram of oxygen gas to form water. If we know formula of water, we can easily determine the mass of an oxygen atom relative to that of hydrogen atom. तो एटॉमिक मास क्या है, डाल्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक मास का। उनके अनुसार जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट का उसके जो एटॉमिक मास होते हैं सेम होते हैं, लेकिन जो उनके साइज होते हैं एटम्स की जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक मास मतलब जो सेम एलिमेंट उसमें जो एटम्स है वो सेम उसका मास रहेगा, लेकिन जो अलग एलिमेंट है उसके जो एटॉमिक मास होंगे वो भी डिफरेंट होगा। और जो डाल्टन थे उन्होंने इंडिविजुअल एटम्स को वेग नहीं किया था, सो उन्होंने रिलेटिव मासेस एलिमेंट का जो कि कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किया था उनको उन्होंने बताया, और उन्होंने क्या किया जो रिलेटिव एटॉमिक मास का उन्होंने डिडक्शन किया। एग्जांपल के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें 1.0000 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे 7.9367 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से वाटर को फॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, ये तो हम लोग रिलेटिव तरीके से कर रहे हैं, अगर हम लोग फॉर्मूला जानेंगे तो हम लोग इजिली डिटरमाइन कर लेंगे कि ऑक्सीजन का मास क्या होगा उसकी जो एटॉमिक रिलेटिव है हाइड्रोजन एटम से। तो हम लोग उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला जानने की जरूरत है, रिलेटिव मास से थोड़ा हार्ड हो जाता है निकालना। So Dalton did not have a way of determining the proportions of atoms to of each element forming water during those days. He assumed the simplest possibility that atoms of oxygen and hydrogen were equal in number. From this assumption, it would follow that oxygen atom would have a mass that was 7.9367 times that of hydrogen atoms. This is in fact was not correct. We now know that in water number of hydrogen atoms is twice the number of oxygen atoms. Formula of water being H2O, therefore relative mass of oxygen atom must be 2 into 7.9367 equal to 15.873 times that of hydrogen atom. After Dalton, relative atomic masses of several elements were determined by scientists based on hydrogen scale. Written on hydrogen based scale was replaced by a scale based on oxygen, as each oxygen was more reactive and formed a large number of compounds. तो डाल्टन कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाए एटम्स के करेक्ट मास को, तो उन्होंने क्या किया रिलेटिव मास निकाला, और उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो एटम्स की पॉसिबिलिटी को उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या बताया कि वो इक्वल नंबर में है, और उनके एजम्पशन के अनुसार उनके मान्यता के अनुसार ये जो ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो 7.9367 है हाइड्रोजन के मास से, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो उन्होंने बताया वो करेक्ट नहीं था, वो इनकरेक्ट था। और हम लोग जानते हैं कि जो वाटर का में जो हाइड्रोजन का जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के एटम से डबल होता है, दुगना होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वाटर का वो H2 है, इसलिए जो रिलेटिव मास है ऑक्सीजन एटम का वो कितना होना चाहिए 7.9367 से दुगना होना चाहिए।
हाइड्रोजन एटम्स के। और डाल्टन का जो रिलेटिव मास था वो सेवरल एलिमेंट्स के द्वारा जो डिटरमाइन किया गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर हाइड्रोजन स्केल के ऊपर बेस्ट अपना रिसर्च किया, और बाद में जो हाइड्रोजन बेस्ड स्केल था उसको रिप्लेस किया गया ऑक्सीजन बेस्ड स्केल से, ठीक है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव था और ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा था। इन 1961 C12 और 6 to the power 12 the atomic mass scale was adopted. This scale depends on measurement of atomic mass by an instrument called mass spectrometer. Mass spectrometer, invented early in 20th century, allows us to determine atomic masses precisely. The masses of atoms are obtained by comparison with C12 atomic mass scale. In fact, C12 isotope is chosen as a standard and arbitrary reassigned a mass of exactly 12 atomic mass units. One atomic mass unit AMU therefore equals exactly 1/12 of mass of a carbon 12 atom. Atomic mass unit AMU is nowadays is written as unified mass unit and is denoted by the letter U. Small u, letter small u, okay. तो 1961 में एक एटॉमिक मास स्केल को अडॉप्ट किया गया था, जिसे जो ये स्केल था वो एटॉमिक मास का उसका जो मेजरमेंट था वो एक इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड था जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे C12 के नाम से भी जाना था। और जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो अर्ली 20th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, उसका आविष्कार किया गया था, और वे हम लोग को क्या डिटरमाइन करता है, एटॉमिक मास को डिटरमाइन करता है। और जो एटम्स का जो मास है वो C12 एटॉमिक मास के कंपैरिजन में ऑब्टेन किया जाता है। और C12 एटॉमिक मास क्या है, एक स्केल है, ठीक है। इनफैक्ट C12 जो आइसोटोप है वो एक स्टैंडर्ड और आर्टिफिशियली एक चूजन स्केल है, जिसके जो मास है वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स के इक्वल है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट को अमु बोला जाता है, देयरफॉर जो इक्वल्स होते हैं 12th ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के, ओके। और जो एटॉमिक मास यूनिट अमु है वो आज के जमाने में कैसा दिखा जाता है, मॉडर्न डेज में स्मॉल यू से इसको डिनोट किया जाता है, लेटर स्मॉल यू से। The relative atomic mass of an element expressed in atomic mass unit is called as atomic weight. Nowadays we are using atomic mass in place of atomic weight. और जो relative atomic mass है एलिमेंट का, उससे atomic mass unit में एक्सप्रेस किया जा रहा है, आज के जमाने में से एटॉमिक वेट के तौर पे यूज किया जाता है, और एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट ने रिप्लेस कर दिया। फर्दर यू हैव सीन दैट Dalton proposed that masses of all atoms in an element are equal, but later on it was found that all atoms of naturally occurring elements are not of the same mass. We shall study about such atoms in the following section. Atomic masses that we generally use in our reaction or in chemical calculations are average atomic masses, which depend upon relative abundance of isotopes of elements. तो जो डाल्टन्स थे उन्होंने मास जो एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स के मास को क्या बताया था कि वो इक्वल है, ओके। बट बाद में क्या पाया गया कि जो एटम्स थे वो जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके जो मास है वो सेम नहीं होते हैं। और हम लोग इस चीज को फॉलोइंग सेक्शन मतलब नीचे के सेक्शन में पढ़ेंगे। जो एटॉमिक मास है उसको जनरली हम लोग अपने जो रिएक्शन होता है केमिकल कैलकुलेशंस में, इसमें एटॉमिक मास के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स एलिमेंट्स है वो उसका जो रिएक्शन है वो कैसे होगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे। वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर स्टॉप चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से या फिर किसी भी क्वेश्चन आंसर से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू एवरीवन।